Hello dear students, welcome back to our maths class. In our last class, we were completed exercise 2.1 and the properties of subtraction also. Now let's start our exercise 2.2 which is based on the topic subtraction. So question number 1 is Question number 1 is subtract the following. Subtract the following and mark the periods in the answers. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इट मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जो पार्ट्स हमें गिवन है उन सबको सब्ट्रैक्ट करना है एंड मार्क द पीरियड्स इन द आंसर. जो आंसर आएगा उनमें हमें पीरियड्स लगाना है, इट मीन्स हमें कोमास लगाने हैं उनमें. ओके, सो ए पार्ट 6,34,568 and subtract 3,92,709 from this number. Okay, let's start our subtraction from right side from the values of ones. 8 minus 9. We can't subtract it because 8 is less than 9. So we have to take and borrow from this side and this become now 18. 18 minus 9 is 9 and this is 5 now. 5 minus 0 is 5. Now subtract the values of hundreds please. 5 minus 7, we can't do this, so we have to take and borrow and this is 15 now. 15 minus 7 is 8. This is 3 now. 3 minus 2 is 1. Very good. 3 minus 9. We can't do this, so we have to take and borrow and this is 13 now. 13 minus 9 is 4. And this is 5 now. 5 minus 3 is 2. 5 minus 3 is 2. So our answer is 2,41,859. Or put the commas in between. So after 3 and 2, 3 to 2. Indians के according commas लगता है कैसे? 3 to 2. Let's do it again. 8 minus 9. We can't do this because 8 is less than 9. So we have to take and borrow from the neighbor. So this is 18 now. 18 minus 9 is 9. This is 5 now. 5 minus 0 is 5. 5 minus 7, we can't do this. So we have to take and borrow and this is 15 now. 15 minus 7 is 8. Very good. This is 3 now. 3 minus 2 is 1. We have to take and borrow and this is 13 now. 13 minus 9 is 4. Very good. And this is 5. 5 minus 3 is 2. So our answer is 2,41,859. 2,41,859 is our answer. Yes. Let's start our second part, that is B part. B part is 4,87,694. 4,87,694 and subtract 2,09,856. 2,09,856 from this number. Subtract. Okay. Let's start our subtraction from this side, from this right side or from the ones values. Okay, 4 minus 6. We can't do this, so we have to take and borrow and this is 14 now. 14 minus 6 is, 14 minus 6 is, very good, 8. Write 8 here.
and this is 8 now. 8 minus 5 is 3. 6 minus 8. We have to take and borrow, and this is 16 now. 16 minus 8 is 8. This is 6 now. And we have to take and borrow. This is 16. 16 minus 9 is 7. This becomes 7 now. 7 minus 0 is 7. And 4 minus 2 is 2. So our answer is 2,77,838. 2,77,838 is our answer. Let's do it again. Listen बेटे, यहाँ पे क्या था 4 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक बोरो लेना पड़ेगा साइड वाले से। तो इन्होंने क्या किया, साइड वाले से बोरो लिया, तो ये क्या बन गया 14। अब 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 8। अच्छा, यहाँ से हमने एक बोरो लिया है, 9 में से हमने 1 ले लिया, तो क्या बचा इसके पास 8। 8 माइनस 5 क्या होगा 3 होगा। यहाँ 6 था बेटा, 6 में से 8 को माइनस नहीं कर पाते, तो हमने क्या किया बोरो लिया और ये हो गया 16। 16 में से अब 8 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। यहाँ से हमने बोरो ले लिया था, तो इट मींस यहाँ इसके पास क्या रह गया 7 था, एक बोरो हमने लिया था तो 6 रह गया, लेकिन 6 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसने भी बोरो लिया, तो ये 16 हो गया। 16 माइनस 9 होगा 7। ओके, यहाँ क्या है, यहाँ इसने बोरो लिया था तो ये 7 रह गया अब इनके पास। 7 में से 0 को माइनस करेंगे 7 ही रहेगा, और यहाँ रह गया 4। 4 माइनस 2 क्या होगा 2। ठीक है, तो ये आपका ए और बी पार्ट है। सेम ऐसे ही पार्ट्स आपको करने हैं सी, डी और ई। सी, डी एंड ई, ये तीनों पार्ट्स आपको खुद को ट्राई करने हैं। सेम ऐसे ही सब्ट्रैक्शन है जो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में रीड करके आ चुके हो, सेम वैसा ही सब्ट्रैक्शन है, कुछ नया नहीं है इसमें, बस वैल्यूज थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, लैक्स में दे दी, करोड़ में दे दी, कुछ ये दे रखी है जस्ट। ठीक है, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन आपका सेम ही रहेगा। तो 2 पार्ट्स मैंने करके दिखाए हैं, बाकी के 3 पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is subtract each of the following. Question number 2. Subtract each of the following. Each of the following and check the answer. And check the answer. आंसर को हमें चेक भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है बेटा, और आंसर को चेक भी करना है। देखो आंसर को कैसे चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एक मिन्यूएंड होता है, एक सब्ट्रा एंड होता है, और आंसर जो आता है उसको डिफरेंस बोलते हैं। देखो जैसे अपना है 25, 25 क्या है मिन्यूएंड, 25 माइनस किया हमने 20, तो 20 क्या है सब्ट्रा एंड। ये मैं जो समझाने के लिए बता रही हूँ अभी आपको, सब्ट्रैक्ट। आंसर क्या आएगा 5 आएगा, तो जो आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं डिफरेंस। ओके, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एक मिन्यूएंड होता है, एक सब्ट्रा एंड होता है, और जो आंसर आता है उसको डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर जो अपना आंसर आया है, अभी हमें क्या करना हो, इसको वेरीफाई करना हो कि आंसर जो आया है वो करेक्ट आया है या नहीं आया, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप एडिशन का यूज करोगे। एडिशन से आप इसको चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, देखो सब्ट्रा एंड को ऊपर ले आओ। सब्ट्रा एंड क्या था अपना 20, सब्ट्रा एंड आ गया, और जो डिफरेंस आया है वो इसमें ऐड कर दो आप। डिफरेंस क्या आया है 5, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा 25। वो क्या आना चाहिए, मिन्यूएंड के इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मिन्यूएंड के इक्वल। तो सब्ट्रैक्शन के सम को चेक करने के लिए कि वो आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो आप एडिशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, एडिशन का कैसे करोगे, आप सब्ट्रा एंड में ऐड करोगे डिफरेंस को।
सब्ट्रा एंड में डिफरेंस को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, मीन्यूएंड के इक्वल आना चाहिए। ये सब्ट्रा एंड था, ये डिफरेंस है आपका, और ये आ गया अब दोबारा से मीन्यूएंड। ठीक है, तो सब्ट्रा एंड में डिफरेंस को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, मीन्यूएंड आएगा। अगर वो मीन्यूएंड के इक्वल आ जाता है तो आपका जो डिफरेंस आया था वो करेक्ट है, और अगर नहीं आता है इट मीन्स आपकी कोई मिस्टेक हुई है उसमें। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, A part is 6,71,209 subtract 3,21,345 from this number. Okay, firstly arrange these values in columns. 6,71,209 and subtract 3,21,345. Subtract the values. 9 minus 5 is 4. 0 minus 4. 0 में से 4 माइनस तो होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 10. 10 minus 4 is, yes, 6. This is 1 now. 1 minus 3, we can't do this, so we have to take and borrow, and this is 11 now. 11 minus 3 is, yes, 8. This is 0 now. 0 minus 1, ये भी नहीं कर सकते, तो हमने लिया बोरो, ये हो गया 10. 10 minus 1 is 9, and this is 6 now. 6 minus 2 is 4. 6 minus 3 is 3. So our answer is 3,49,864. 3,49,864 is our answer. And let's check that our answer is correct or not. So this is minuend, this is subtrahend, and this is difference. So write subtrahend here, that is 3,21,345, and add difference in this number. Difference is 3,49,864. If the answer is equal to the minuend, then our difference is correct. Let's see. 5 plus 4, 9. 6 plus 4, 10. Write 0 here and 1 carry on the next place. 8 plus 3, 11. 11 plus 1 is 12. Write 2 here and 1 carry on the next place. 9 plus 1, 10. 10 plus 1 carry 11. Write 1 here and 1 carry on the next place. 4 plus 2, 6. 6 plus 1 carry is 7. 3 plus 3 is 6. So our answer is 6,71,209. Is that equal to minuend? Yes. 6,71,209 is the minuend. So our difference is correct. So this is the verification of the subtraction. ये होता है verification किसका, subtraction का, कि जब भी minuend में से subtrahend को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा। इसको चेक करने के लिए subtrahend में डिफरेंस को प्लस कर देंगे। subtrahend में डिफरेंस को प्लस करेंगे, वो इक्वल आना चाहिए किसके, minuend के। ओके बेटा, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सारे पार्ट्स करने हैं। एक और पार्ट मैं कर देती हूँ, एक सेकंड पार्ट और मैं करवा देती हूँ। Let's see the second B part. B part is 78 lakh and subtract 65,47,000. 65,47,000 from 78 lakh. 78 lakh में से हमें 65 lakh से 47,000 को माइनस करना है। Firstly, arrange these numbers in columns. 78 lakh and subtract 65,47,000. Subtract the values. 0 minus 0, 0, 0 minus 0, 0, 0 minus 0, 0. 0 minus 7. We can't do this, so we have to take and borrow, and this is 10 now. 10 minus 7 is 3. This is 9. 9 minus 4 is 5. This is 7 now. 7 minus 5 is 2.
and this is 7 minus 6 is 1. Is it correct or not? Let's see. 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0. And 0 minus 7, we can't do this, so we have to take and borrow, and this is 10 now. 10 minus 7 is 3. This is 9 now. 9 minus 4 is 5. This is 7 now. 7 minus 5 is 2. And this is 7 minus 6 is 1. So our difference is 12,53,000. 12,53,000 is our difference. Now let's check the answer is correct or not. So write subtrahend here. This is subtrahend now. So 65,47,000 here, and add difference in this 12,53,000. If the answer is equal to the minuend, then the difference is correct. Let's see. 0 plus 0, 0. 0 plus 0, 0. 0 plus 0, 0. 7 plus 3, 10. Write 0 here and 1 carry on the next place. 5 plus 4, 9. 9 plus 1 is 10. Write 0 here and 1 carry on the next place. 2 plus 5, 7. 7 plus 1 is 8. 6 plus 1 is 7. Is it equal to minuend? Yes, 78 lakh is our minuend. So our difference is correct. ओके, तो हमने जो आंसर निकाला है, जो डिफरेंस हमने निकाला है, वो क्या है? करेक्ट है. ओके बेटा, ऐसे ही आपको बाकी के दो पार्ट्स करने हैं. पहले आप डिफरेंस निकालोगे. डिफरेंस निकालने के बाद आपको आंसर को चेक करना है. कैसे चेक करोगे? जो सबट्राएंड है, यानी जो आपने माइनस किया है, उसमें आपको डिफरेंस को प्लस करना है. जो आंसर आया है वो इन दोनों को प्लस करोगे, और वो किसके इक्वल आना चाहिए? minuend के, ऊपर वाले के इक्वल आना चाहिए. ठीक है. Now the question number 3. Question number 3 is find the differences on subtracting the following. Question number 3. Find the differences. Find the differences on subtracting the following. डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है. इसमें भी हमें सब्ट्रैक्ट करके. ए पार्ट 22,873 from 54,201. 22,873 subtracted from 54,201. फ्रॉम बोला है ना, फ्रॉम, यानी फ्रॉम के बाद वाला ऊपर आएगा. इट मींस minuend आपका क्या होगा? 54,201 होगा. क्योंकि जो फ्रॉम होता है, इट मींस हमें उसमें से माइनस करना है. तो फ्रॉम के बाद जो लिखा गया है वो आप क्या करोगे? कॉलम्स में सबसे पहले लगाओगे 54,201. नाउ सब्ट्रैक्ट 22,873. ओके, फ्रॉम बोला है, इट मींस फ्रॉम में से हमें क्या करना है? माइनस करना है. तो फ्रॉम वाले को आप पहले लिखोगे. ये नहीं है कि इसको ऊपर लिख दो और ये चीज माइनस करो, ऐसा कभी नहीं होगा. फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो ऊपर आएगा और ये वाला आप नीचे लिखोगे. तो फ्रॉम के बाद वाला minuend बनेगा और पहले वाला सबट्रा है. अब हमें फाइंड आउट करना है इनका डिफरेंस बेटा. So 1 minus 3, we can't do this, so we have to take and borrow, and this is 11 now. 11 minus 3 is 8. This is 9 now. 9 minus 7 is 2. This is 1, and we have to take and borrow. This is 11 now. 11 minus 8 is 3. This is 3 now. 3 minus 2 is 1. 5 minus 2 is 3. So our answer is 31,328. 31,328 is our difference. So हमें डिफरेंस ही फाइंड आउट करना था. सेम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन चल रहे हैं, बस उनको क्या कर रहा है, कभी तो ये
वर्ड्स में लिख देता है, कभी कॉलम्स में लिख देता है, कभी हॉरिजॉन्टली, कभी वर्टिकली, ऐसे लिख देता है। ठीक है, तो अभी इन्होंने लिखा है कि 22,873 को माइनस करना है किस में से, 54,201 में से। तो हमने 54,201 को पहले लिखा और फिर लिखा हमने 22,873 और इन दोनों को क्या किया है, सिंपल सब्ट्रैक्शन किया है। ओके, ऐसे ही आपको बाकी के पार्ट्स करने हैं। एक और पार्ट मैं कर देती हूँ, 2,75,852 फ्रॉम किस में से माइनस करना है, 5,54,996 में से। तो फ्रॉम के बाद मैंने आपको बताया कि फ्रॉम के बाद वाला हम लिखेंगे ऊपर। फ्रॉम के बाद क्या है, 5,54,996 और माइनस क्या करेंगे, 2,75,852 को, इनको हमें माइनस करना है। ये 6 - 2 is 4. Okay, 9 - 5 is also 4. 9 - 8 is 1, 4. This is 14 now. 14 - 5 is 9. This is 4 now. This is 14. 14 - 7 is 7. And this become 4 now. 4 - 2 is 2. So our answer is 2,79,144. 2,79,144 is our answer. तो ऐसे ही आपको बेटा सी और डी पार्ट करना है। हर क्वेश्चन के 4 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट वाले में 5 पार्ट्स हैं, वो 5 पार्ट्स आज आप करोगे, सेकंड के 4 पार्ट्स और थर्ड के 4 पार्ट, ये आज आपको करना है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन है 4 और 5, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आप ये 3 क्वेश्चन है ये फेयर नोटबुक में कर लीजिए और इन क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपनी लाइव क्लास या डाउट क्लास जो होती है उसमें हम लेते हैं फिर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ये 3 क्वेश्चन आज आप अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। ओके बेटा।